Hello students, today in this lecture I will discuss the force experienced by the current carrying conductor which is placed in the magnetic field. Okay. Now let us suppose as this, that there exists the conductor which carries the current I along the positive x-axis. Let us suppose a small l. Let us suppose a small l be the length of the conductor and the area of cross section of the conductor. The area of cross section of the conductor is say capital A. Now, if the current is flowing in this direction, then what will happen? Then since the electrons, the free electrons, they will drift in the direction opposite to that of current, and they are going to have some drift velocity. Now, since as we had discussed already in the last lecture, that whenever the charge is in motion in the magnetic field, then that charge always experiences the magnetic force. Now, when the current is flowing through the conductor, then since some free electrons, okay, some free electrons, or we can say that there will exist the large number of free electrons which will drift in the direction opposite to that of the current. Now, all these electrons, they are going to experience the magnetic force due to the magnetic field. Got it? Now, the total force, the total magnetic force which is experienced by all the free electrons which are present inside the conductor, okay, we can say that it will be the force which is experienced by the current carrying conductor itself. So, since in today's lecture, what we are going to do? We are going to first of all calculate the force experienced by single free electron which is drifting in the direction opposite to that of the flow of current. Fine. Then, since we are going to try to calculate the number of free electrons inside the conductor. Got it? Then, since we are going to calculate the total force experienced by all the drifting free electrons inside the conductor. Now, this total force which is experienced by all the drifting free electrons inside the conductors, it is the force or the magnetic force which itself experienced by the current carrying conductor. Fine. It will be the logarithm, it will be the approach. Fine. Now, take a look. We are having a conductor. The length of the conductor is L. The area of cross section of the conductor is say capital A. And this conductor is subjected to this magnetic field say vector B which is acting along positive y-axis. Fine. Now, it is suppose say one free electron inside the conductor which is drifting in the direction opposite to that of the current, and the drift velocity is v. Fine. Now, since let us first of all make some consideration. Note it down. Consider the conductor having the length small l and the area of cross section capital A which carries the current I and is subjected to the magnetic field vector B. Full stop. The direction of the magnetic field vector B is along positive y-axis, and the length of the conductor is along x-axis. Full stop. Now, since we are going to talk about the force experience, let small f be the magnitude of the force experienced by every drifting free electron inside the current carrying conductor. Got it? Now, take a look. Now, since the magnetic field is along the positive y-axis and the drift velocity of the electron is towards the negative x-axis, okay, so the angle between the velocity vector and the magnetic field vector is 90.
So since every drifting free electron will experience the maximum magnetic force. Okay, so the small f, it will be, say, the charge on the electron. The charge on the electron, let us suppose it is small e. The speed with which the electron is moving, it will be the drift speed, the drift velocity, say Vd, and B will be the magnitude of the magnetic field. Fine, sense? So it will be the force experienced by every drifting free electron inside the conductor which is subjected to the magnetic field, say vector B. Fine. Okay. Now, in the next line, let small n be the number density of the free electrons inside the conductor, and capital N be the total number of free electrons inside the conductor which are drifting towards the negative x-axis. So since, say, small n is the number density of the free electrons, capital N is the total number of free electrons inside the conductor. So number density is total number of free electrons divided by the volume of the conductor. The volume of the conductor will be the area of cross section of the conductor multiplied with the length of the conductor. So since this capital N, the total number of free electrons, it will be small n multiplied with A multiplied with L. Got it? Now, these are the total number of free electrons inside the conductor, and every drifting free electron experiences this much force. So since the total force experienced by all the drifting free electrons, it will be, take a look. First of all, make a statement. Let capital F be the magnitude. Let capital F be the magnitude of the magnetic force experienced by all the drifting free electrons inside the conductor. So since this capital F is written as, say, capital N multiplied with small f. Capital N multiplied with small f. So this capital F is written as small n into, say, A into, say, L into, say, E Vd into, say, P. Got it? बेटा क्लियर हो गया? बात समझ आ रही? अब बड़े ध्यान से सुनिए. हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेटा रिलेशन किया था बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. I is equals to NEAVD. तो सेंस देखिए, नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर दिखाई दे रहा है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड भी दिखाई दे रहा है. सो I is equals to NEAVD. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें. Now since this I is equals to NEAVD, got it? So we can say that the force F is written as ILD. Got it? NEAVD. Okay, NAEVD. तो बेटा ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा. सो सिंस वी कैन से, तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इतना आ गया. अब क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो सेंस इसका डायरेक्शन भी होगा. तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? तो ध्यान से देखिए. नाउ वी कैन से दैट दिस वेक्टर F is written as, say, I multiplied with vector L cross vector B. I is written as vector L cross vector B. So the direction of the force is defined by the direction of cross product of vector L and vector B. Got it, friends? अब ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. क्लियर हो गई बात? समझ आ गई ये बात? ओके. अब बेटा देखिए, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, यहां तो बता दिया कि इट इज डिफाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B. अब ध्यान से देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी है. क्लियर? अब देखिए, सिंस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर है तो कैसे यूज करना है? हमारे पास लेफ्ट हैंड पंच बनाएंगे, फर्स्ट फिंगर को रिलीज करेंगे. बेटा थंब को देखिए, थंब को नकल पे लगाएंगे सेकंड फिंगर की,
फर्स्ट फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग, बात समझ आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड फिंगर को रिलीज करेंगे, थंब से देखिए पकड़ के रखा हुआ है, क्लियर। अब ये जो सेकंड फिंगर है इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर आप उसके बाद थंब को रिलीज करेंगे। समझ आ गई बात? दोबारा करते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड पंच, बेटा ये जो रिस्ट है, रिस्ट को रखा ओरिजिन पे, पहले फर्स्ट फिंगर को रिलीज किया अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, थंब सेकंड फिंगर के नकल पे लगा के रखा हुआ है, सेकंड फिंगर को रिलीज किया, सेकंड फिंगर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसके बाद थंब को रिलीज किया, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। बात समझ आ गई? आप ऐसा करें, पहले जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर उसके बाद बात करते हैं। Yes, sir. अब देखिए बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है F इक्वल्स टू आई एल बी, F इक्वल्स टू आई एल बी, इसको हाईलाइट कर ले, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर ले। Now, the direction of magnetic force. बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डिफाइन करेंगे। बेटा जो फर्स्ट फिंगर है इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, the direction of magnetic field। बेटा जो सेकंड फिंगर है it will give you the direction of current, बेटा जो थंब है it will give you the direction of magnetic force से वेक्टर F। बेटा बात समझ आ गई? कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। और बेटा ये वाली जो इक्वेशन है इसको सेकंड कर ले। डन? बेटा बात समझ आ गई? जल्दी कॉपी करिए। अब बेटा बात करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द पैरेलल कंडक्टर्स व्हिच आर कैरिंग करंट। तो बेटा पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होने वाले हैं। अब अगर पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होने वाले हैं तो स्टूडेंट्स द करंट कैरीड बाय देम इट कैन बी इन द सेम डायरेक्शन और इट कैन बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स पहले इंटरेक्शन एडवांस में मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, समझा देता हूं क्या होता है। अब बड़े ध्यान से समझिए। इंटरेक्शन बिटवीन द पैरेलल कंडक्टर्स, लेट अस सपोज से, क्योंकि हमने बेटा इस इंटरेक्शन को डिराइव भी करना है तो लॉन्ग कंडक्टर्स कंसिडर करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर्स कैरी करंट। इंटरेक्शन बिटवीन द पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर्स कैरिंग करंट। तो फ्रेंड्स पहले इंटरेक्शन कैसा है मैं वो समझा रहा हूं और वो इंटरेक्शन क्यों है वो समझा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज से these are the two
पैरेलल कंडक्टर्स which carries the current say I1 and I2. तो सिर्फ पहले हम सेम डायरेक्शन में करंट्स का केस कंसीडर करें. The conductors they carries the current in the same direction. अब बड़े ध्यान से देखिए. Let us suppose say it is the point say C and it is the point say D. पॉइंट C पर पहले लेंथ एलिमेंट मार्क कर रहे हैं, सपोज से वेक्टर DL1. पॉइंट D पर लेंथ एलिमेंट मार्क कर रहे हैं, लेट अस सपोज इट इज DL2 वेक्टर. गॉट इट? अब बड़े ध्यान से देखिए. पहले फर्स्ट कंडक्टर की वजह से बात करेंगे, तो ध्यान से देखिए. एट द पॉइंट D, बेटा पॉइंट D पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे. देखिए बेटा पॉइंट D सेकेंड कंडक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, तो बेटा करंट I2 का मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट D इट विल बी 0. ओके. अब लेकिन ये जो पॉइंट D है ये फर्स्ट कंडक्टर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है. ओके. ये जो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेट अस सपोज इट इज आर. ओके. तो सो इस फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट D, मतलब करंट I1 की वजह से D पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो होगा. मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. ओके. राइट पाम को यहां पे रखा, हाथ घुमाया, थंब लेके आए करंट के अलोंग, फिंगर्स को कर्ल किया, फिंगर्स पॉइंट आउट कर रही हैं अंदर की तरफ. तो बेटा यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है D पॉइंट पर, दैट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन. लेट अस सपोज से दिस इज ए वेक्टर B1. वेक्टर B1 का जो डायरेक्शन है दैट इज से इनवर्ड. गॉट इट? अब बड़े ध्यान से समझिए. तो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड कंडक्टर है, ये जो सेकंड कंडक्टर है जिसके अंदर करंट I2 फ्लो कर रहा है, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर I2 is under the influence of the magnetic field due to the current I1 which is flowing in the first conductor. Got it? अब बड़े ध्यान से देखिए. सिंस हमने अगर D पॉइंट पर लेंथ एलिमेंट वेक्टर DL2 कंसिडर किया है, तो वी कैन से कि बेटा ये लेंथ DL2 मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B1 में एग्जिस्ट कर रही है. बात समझ आ गई? क्लियर? तो बेटा ये जो लेंथ है ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. बेटा अब इस लेंथ ने कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया, ध्यान से देखिए. द मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस DL2, इट विल बी द करंट से I2. अभी हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया, I मल्टीप्लाइड विद द लेंथ ऑफ द कंडक्टर मल्टीप्लाइड विद द मैग्नेटिक फील्ड. I2 is the current which is flowing through this DL2. The magnetic field in magnitude is say B1. Okay, clear हो गई ये बात? And the length is DL2. Okay. अब स्विंस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर स्विंस फोर्स का डायरेक्शन मार्क करते हैं. फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं किधर आता है. देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करने वाले, लेफ्ट हैंड पंच बना रहे हैं. फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग. मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ. गॉट इट? ओके. फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग. सेकेंड फिंगर रिलीज किया लेकिन थंब से पकड़ के रखा हुआ है. अब बेटा हाथ को घुमाएंगे. कैसे घुमाएंगे सिखाया था. इस फिंगर को पकड़िए, बस ऐसे घूम सकता है आप, ऐसे नहीं, ऐसे. तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सेकेंड फिंगर को रिलीज किया, हाथ को घुमाया, सेकंड फिंगर आ गया करंट I2 के अलोंग, थंब को रिलीज किया. तो जब थंब को रिलीज किया तो आपने देखा कि बेटा ये जो लेंथ एलिमेंट है वेक्टर DL2, ये बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. क्लियर हो गई बात? मतलब स्टूडेंट्स दिस F21 वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन. ये बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया. अब चलिए अब बात करते हैं पॉइंट C. ठीक है. जैसे हमने I2 का करंट बोला D पर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, दोबारा से स्टार्टिंग से काम करें. पहले पॉइंट C को देखते हैं. तो बेटा पॉइंट C दिखाई दे रहा है. इट लाइज ऑन द कंडक्टर व्हिच कैरीज द करंट से I1. ओके.
Now, as this point C, it lies on the conductor which is carrying the current I1. So the magnetic field at this point C, due to this current I1, it will be equals to 0. Okay? Clear? तो बेटा I1 का मैग्नेटिक फील्ड C पॉइंट पर 0. अब बचा करंट I2. I2 का मैग्नेटिक फील्ड C पॉइंट पर निकालना है. क्लियर हो गई बात? तो सिंस पॉइंट C, लॉन्ग कंडक्टर विच इज कैरिंग द करंट I2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है. मैग्नेटिक फील्ड B, इट विल बी इक्वल्स टू K into 2I डिवाइडेड बाय R इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, वैसे भी हमने अभी डेरिवेशन करनी है, अभी तो सिर्फ इंटरेक्शन समझा रहा हूं. डेरिवेशन में सारी वैल्यूज आएंगी, अभी सिर्फ इंटरेक्शन कैसा है. तो सिंस I2 का मैग्नेटिक फील्ड पहले पॉइंट C पर डिटरमाइन करते हैं. ध्यान से देखिए, I2 के मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है. ऐसे खड़े हो जाता हूं, राइट हैंड दिखाई दे रहा है बेटा. राइट हैंड को ऐसे रखा, घुमाया, थंब आ गया करंट के अलोंग, फिंगर्स को कर्ल करने की कोशिश की, फिंगर्स आ गई आउटवर्ड डायरेक्शन. तो पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया? पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया, दैट इज टुवर्ड्स द रीडर हो गया. व्हाट है? तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट सी हो गया जी आपका टुवर्ड्स द रीडर. लेट अस कॉल दिस मैग्नेटिक फील्ड एज वेक्टर B2. और बेटा इस वाली लेंथ को बोल देते हैं, इट इज से DL1 वेक्टर. लेंथ को बोलते हैं DL1 वेक्टर. व्हाट है? अब ध्यान से देखिए, C पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B2, और उसका डायरेक्शन क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड एंड टुवर्ड्स द रीडर. समझ आ गई ये बात? अब फिर से बेटा ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है, लेंथ DL1 आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये जो लेंथ DL1 आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B2 के इन्फ्लुएंस में है. तो सिंस B2 की वजह से ये लेंथ DL1 मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि इसके अंदर से करंट I1 फ्लो करता है. तो मान लेते हैं अब बात कर रहे हैं हम एट द पॉइंट C की. F12 is the force which is experienced by the length DL1. So it will be the current which is flowing through the length DL1 is say I1. The magnitude of the magnetic field is say B2 and the length is say DL1. बात समझ आ गई बेटा? तो बेटा ये जो लेंथ DL1 है, ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. अब स्टूडेंट्स देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होने वाला है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दोबारा से यूज करते हैं. पंच बनाएंगे, फर्स्ट फिंगर को पहले रिलीज करते हैं, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग आएगी. अब ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड कैसे था? मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड टुवर्ड्स द रीडर. आप देख रहे हैं तो आप रीडर है. क्लियर? तो सिंस फर्स्ट फिंगर को ऐसे रखते हैं, मैं हाथ को बिल्कुल सीधा रख रहा हूं बेटा. सेकंड फिंगर को रिलीज करना है, थंब से पकड़ के रखा हुआ है. ठीक है, सेकंड फिंगर को रिलीज किया. ठीक है, पिक्चर क्लियर हो गई? बात समझ आ गई? ओके, फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स द रीडर. ओके, सेकंड फिंगर अलोंग द करंट. करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ध्यान से देखिए फिगर में, करंट ऊपर की तरफ. बेटा थंब को रिलीज करेंगे, थंब को जब आप रिलीज करेंगे तो थंब आएगा टुवर्ड्स द सेकंड कंडक्टर. तो सिंस ये वाला जो फोर्स होगा से वेक्टर F12, ये कैसे आया? ये आ गया टुवर्ड्स द कंडक्टर व्हिच इज कैरिंग द करंट I. तो आपने देख लिया कि सिंस बेटा फर्स्ट कंडक्टर जिसके अंदर करंट I1 है, उस पर हमने लेंथ एलिमेंट DL1 कंसीडर किया हुआ था. सेकेंड कंडक्टर जिसके अंदर करंट I2 है, उस पर हमने लेंथ एलिमेंट DL2 कंसीडर किया हुआ था. तो ये दोनों जो लेंथ एलिमेंट्स हैं, they are experiencing the magnetic forces which are directed in the opposite direction and towards each other. Clear? So the same will hold for all the length elements which are present on the entire length of the two conductors. So in short we can say that the two conductors बेटा लॉन्ग हो या लेंथ उनका फाइनाइट हो, ये मैटर नहीं करता. ठीक है, जब हम सिर्फ इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं. तो बेटा क्या देखा अभी हमने देखा कि बेटा टू पैरेलल कंडक्टर्स व्हिच कैरीज द करंट इन द सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. बात समझ आ गई?
क्लियर हो गई ये बात? ओके, अभी इनका डेरिवेशन करेंगे, पूरा मैनिपुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं सारे। तो सेम डायरेक्शन का मैं आपको करके दूंगा पूरा, ऑपोजिट डायरेक्शन का आपने करना है। ऑपोजिट डायरेक्शन जैसे ही मैंने सेम डायरेक्शन डिस्कस कर लिया आपके साथ, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन भी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? तो बेटा सेम डायरेक्शन में समझ आ गया कि जो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, करंट है उनके अंदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? अब देखते हैं। अब बेटा बात करते हैं पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर्स की, फिर से बात करते हैं। अब की बारी दोनों के अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट अस सपोज these are the two parallel long conductors and they carries the currents, say I1 and I2 in the opposite directions. Clear? फिर से हम लेंथ एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। फिर से हमने पॉइंट्स C और D को कंसीडर कर लिया। तो पॉइंट C पर लेंथ एलिमेंट मार्क करते हैं। लेट अस सपोज इट इज DL1 वेक्टर। बेटा पॉइंट D पर लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इट will be DL2 वेक्टर। गॉट इट? ओके, लेंथ एलिमेंट कैसे मार्क करते हैं? बायोट-सवर्त लॉ जब कराया था तब सिखाया था। अब बेटा दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज सपोज से स्मॉल r। क्लियर? फिर से स्ट्रेस जैसे पहले किया था अभी वैसे कर। पहले बात करेंगे एट द पॉइंट D। पॉइंट D पर, पॉइंट D को देखिए। पॉइंट D पर हमने लेंथ एलिमेंट वेक्टर DL2 कंसीडर किया। अभी ये पॉइंट D बेटा कंडक्टर की लेंथ के ऊपर एक्सिस्ट कर रहा है, तो I2 का मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट D इट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये पॉइंट D फर्स्ट कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे नजर आ रहा है, तो एट द पॉइंट D there will exist some current, there will exist some magnetic field due to the current I1 which is flowing in the first conductor। तो पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर से राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड को ऐसे रखा। क्लियर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, आपके लिए पेपर, मेरे लिए व्हाइट बोर्ड। और फिर हाथ को रोटेट करेंगे। हाथ को रोटेट करेंगे, थंब आएगा करंट के लॉन्ग, फिंगर्स पॉइंट करेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की साइड। फिर फिंगर्स को हल्का सा बेंड करेंगे। फिंगर्स को जब आप बेंड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फिंगर्स कैसे पॉइंट आउट कर रही है? फिंगर्स पॉइंट आउट कर रही है अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट D ड्यू टू दिस करंट I1 इट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ आ गई? तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। लेट अस कॉल दिस मैग्नेटिक फील्ड एज ए वेक्टर B1। गॉट इट? कितना है उसकी बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो एट द पॉइंट D बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इट इज ए वेक्टर B1 और डायरेक्शन क्या था? डायरेक्शन था इनवर्ड। ओके, डायरेक्शन इज इनवर्ड। सिंपल सी बात है, समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए बेटा, पॉइंट D पर हमने लेंथ एलिमेंट वेक्टर DL2 कंसीडर किया हुआ है। ओके, यानी जो लेंथ है हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। लेंथ इज DL2 इन मैग्नीट्यूड एंड वी आर सेइंग दैट द लेंथ एलिमेंट वेक्टर DL2 इट एग्जिस्ट्स एट दिस पॉइंट से D। अब बेटा लेंथ DL2, इसके अंदर करंट आपको I2 दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B2 है जो कि अंदर की तरफ है। तो फिर से स्विच बेटा, ये वाली लेंथ जिसके अंदर करंट I2 है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड से वेक्टर B1। तो बेटा फिर से ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो देखते हैं पहले मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस किया, लेट अस सपोज इट इज F21। पहले एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस DL2 इट इज से I2। द लेंथ को चलिए बाद में लिखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड इज B1 एंड द लेंथ इज से DL2। बात समझ आ गई? अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अंदर की तरफ। इसके लिए यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड हो गया, पंच बनाया, फर्स्ट फिंगर को स्ट्रेच किया, थंब को सेकंड फिंगर के नकल पे रखा है। बात समझ आ गई? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड फिंगर को यहीं पे स्ट्रेच किया, सेकंड फिंगर को स्ट्रेच कर रहे हैं। अब बेटा हाथ को घुमाना है, सेकंड फिंगर को लेके आना है करंट के लॉन्ग, तो हाथ को घुमाया ऐसे, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है।
अब की बारी थंब को रिलीज किया, तो थंब को रिलीज किया तो कैसे आ रहा है, थंब आ रहा है अवे फ्रॉम द कंडक्टर कैरिंग द करंट I1। तो जो फोर्स का डायरेक्शन आ गया दैट इज इन दिस डायरेक्शन, इट इज F21 वेक्टर। मैं इधर मार्क करूंगा, क्लियर हो गई बात? ओके चलिए एक काम करते हैं, इधर मार्क ना करके ज्यादा अच्छा यहां पे लगेगा, हम यहां पे मार्क कर लेते हैं। तो बेटा ये जो फोर्स आ गया F21 वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में आ गया और ये लेंथ था DL2। क्लियर, समझ आ गई बात? अब दोबारा करते हैं, अब पॉइंट सी की बात करते हैं। एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी, पॉइंट सी को देखिए, पॉइंट सी फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट सी विल बी 0। अब पॉइंट सी सेकेंड कंडक्टर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो पॉइंट सी पर करंट I2 का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो स्ट्रेस उसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। तो अब की बारी स्ट्रेस ऑब्जर्वेशन पॉइंट है सी, कंडक्टर इज दिस वन, इट कैरीज द करंट I2, तो राइट हैंड को ऐसे रखा, क्लियर, हाथ को घुमाएंगे, थंब को करंट के अलोंग लेके आएंगे, उसके बाद फिंगर्स को कर्ल करेंगे, फिंगर्स कैसे जा रही है अंदर की तरफ। तो यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज सपोज से वेक्टर V2 और उसका जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है दैट इज अगेन इनवर्ड। तो एट द पॉइंट C क्या है, वेक्टर V2 इज द मैग्नेटिक फील्ड whose direction is inward। बात समझ आ गई? अब बेटा पॉइंट C पर आपको लेंथ एलिमेंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट C पर आपको लेंथ एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ओके हाईलाइट कर दिया मैंने उसको। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है अंदर की तरफ, बेटा फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड पंच, फर्स्ट फिंगर को रिलीज किया, थंब को सेकंड फिंगर के नकल पे लगा के रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड फिंगर को स्ट्रेच किया है, अभी हाथ घुमाया इस तरीके से कि सेकंड फिंगर करंट के अलोंग आ जाए, करंट ऊपर की तरफ है इसलिए फ्रेंड्स हाथ को हमने ऐसे घुमाया। इसके बाद थंब को रिलीज करेंगे, थंब को रिलीज करेंगे तो फोर्स किधर दिखाई दे रहा है आपको, फोर्स बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स वेक्टर F12 it will be the force experienced by this length DL1। okay, so this force F12 in magnitude it will be first of all current, then the magnetic field, then the length। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए बेटा, दोनों फोर्सेस को देखिए, F12 वेक्टर को देखिए, F21 वेक्टर को देखिए, दोनों फोर्सेस कैसे हैं? दोनों फोर्सेस जो लेंथ एलिमेंट्स DL1 वेक्टर और DL2 वेक्टर ने एक्सपीरियंस किए हैं, दे आर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। फिर से डायरेक्शन तो अपोजिट है, ठीक है, डायरेक्शन फिर से अपोजिट है, और ये फोर्सेस कैसे हैं? ये फोर्सेस अवे फ्रॉम द कंडक्टर्स हैं। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स इस केस में जो बेटा पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे कंडक्टर्स हमेशा रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस कैसी होती है? बाहर की तरफ। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स सेम डायरेक्शन का कैलकुलेशन स्टेप वाइज बताऊंगा, वो मैं करके दे रहा हूं आपको। ऑपोजिट डायरेक्शन का कैलकुलेशन खुद करना है आपने, और ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आता है तो ये 3 मार्क्स में एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहता है, या तो इंटरेक्शन को प्रूव करना पड़ता है, अदरवाइज कोई न्यूमेरिकल आता है, लेकिन ये हॉटेस्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेम डायरेक्शन की बात करते हैं। करंट इन सेम डायरेक्शन। बेटा करंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा, करंट सेम डायरेक्शन में होगा, पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर्स होंगे जिनके अंदर करंट फ्लो करेगा। The conductors having
करंट थोड़ा ऐड कर लेते हैं, द पैरेलल कंडक्टर्स having current in the same direction will attract or say attract each other. Attract each other. और अगर बेटा करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा बेटा, द पैरेलल कंडक्टर्स हैविंग करंट इन opposite direction repels each other. Got it? यहां पर इस केस में रिपल्शन आएगा, कॉपी कर लें आप। Yes, sir, it's done. तो बेटा interaction between the parallel long conductors carrying current in same direction बेटा analytical approach, मतलब स्टेप वाइज बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू कंडक्टर्स विच आर पैरेलल लॉन्ग एंड कैरीज द करंट इन द सेम डायरेक्शन, इसको कैलकुलेट करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी डिस्कशन में हमने क्या किया था, हमने कैलकुलेट किया था फोर्स एक्सपीरियंस बाय द गिवन लेंथ, अब कैलकुलेट करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, गॉट इट? पहले जल्दी से फिगर कॉपी कर लें, पहले जल्दी से फिगर कॉपी करें। इस पॉइंट को सी मार्क कर लें, इसको डी मार्क कर लें। यस सर, फिगर कॉपी हो गया। नया पहले कंसिडरेशंस लिख लें। कंसिडर two parallel long conductors which carries the current I1 and I2
in the same direction. Full stop. Let vector dl1 and vector dl2 be the current length elements at the points C and D on the conductors as shown in the figure. Full stop. Next line में लिखें. Let small r be the perpendicular distance between the parallel current carrying conductors. Full stop. अब बेटा बड़े ध्यान से मेरी बात सुने. पहले पॉइंट डी के लिए काम करेंगे, मतलब बेटा लेंथ dl2 ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर इस पूरे कंडक्टर का फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे जो इसने एक्सपीरियंस किया है. क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे डी पॉइंट से. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें. ऐसे लिखें. पहले बात करें एट द पॉइंट डी, इसको अंडरलाइन करें. नेक्स्ट लाइन में लिखें. लेट वेक्टर B1 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट D. तो ध्यान से देखिए, राइट हैंड थंब रूल से I1 की वजह से D पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा, I2 का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा. तो राइट हैंड थंब रूल से पहले डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं. राइट हैंड देख रहे हैं, इस तरीके से हमने रखा है, फिंगर्स पॉइंट कर रही है टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट. फिर हाथ को घुमाएंगे, थंब आ जाएगा करंट के अलोंग, फिर फिंगर्स को बेंड करेंगे हल्का. फिंगर्स कैसे जा रही हैं? इनवर्ड डायरेक्शन. तो बेटा वेक्टर B1 मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट D ड्यू टू दिस करंट I1, I2 का मैग्नेटिक फील्ड 0 है. क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट D कंडक्टर पे लाई कर रहा है. समझाया जा चुका. तो एट द पॉइंट D लिख करके आप अंडरलाइन करें. इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखें. लेट वेक्टर B1 be the magnetic field at the point T on the conductor carrying the current I2. तो B1 की बात करें, अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. It will be K multiplied with 2I divided by say small r. क्लियर? मैं K का वैल्यू भी डाल रहा हूं. तो यहां पर हमने किसी मीडियम की बात नहीं की है, तो हमने A की बात की है. तो since this B1 is written as K का वैल्यू it is mu naught by 4 pi multiplied with twice of I divided by R. अब बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B1 it is perpendicular to the plane of conductors and inward or away from reader. बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? Now we are going to call this as the equation number first. साथ साथ कॉपी करें जरा, ये एनालिटिकल अप्रोच लंबी है. ठीक है, तो यहां पर 3 से 4 इक्वेशंस फॉर्म करेंगे. तो इसको साथ साथ कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करें. यस सर. नेक्स्ट लाइन में लिखें. लेट वेक्टर F21 स्मॉल f, ये लिखना है. स्मॉल F21 वेक्टर, ऐसे लिखें. लेट F21 स्मॉल f यूज करना है. स्मॉल F21 वेक्टर बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the length element vector dl2 carrying the current I2. तो स्टूडेंट्स अब बेटा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. अब नेक्स्ट लाइन में लिखें. इन मैग्नीट्यूड this F21 is written as, पहले बात करेंगे करंट की. करंट है I2. मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड इज B1, द लेंथ एलिमेंट इज dl2. बात समझ आ गई? जल्दी से कॉपी करें. डन. यहां तक कॉपी हो गया. यहां तक कॉपी करने के बाद
आप ऐसा करें कि इसको लिखें इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट लाइन में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F21 की बात करें। लिखिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F21, अंडरलाइन करिए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F21 लिखिए, अंडरलाइन करिए। ठीक है, मैं बोर्ड पर लिखता हूं, पहले आपने अगर ये कॉपी कर लिया तो एक बार आप कॉपी कर लें। यस, कॉपी हो जाएगा तो मैं बोर्ड पर लिखकर मैं कर देता हूं। और स्टूडेंट्स यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा था शायद उसमें हम I1 मेंशन करना भूल गए, तो वहां पर करंट I1 मेंशन कर लेना। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F21 बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखा है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखा है, इज along vector DC, is along vector DC। क्लियर? D दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, इसको वेक्टर मान लेते हैं, तो यहां पर इसको ऐसे मार्क करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? दैट इज सपोज से R21 वेक्टर। बात कर लेते हैं R cap 21 is the unit vector in this direction. R cap 21 is the unit vector in this direction, vector DC। तो D2C पल्ले पड़ गई बात, इतना काम क्लियर हो गया। So friends, this F21 vector is written as say I2 multiplied with B1 multiplied with DL2 multiplied with R cap 21। बात समझ आ गई? तो एक काम करें सर, इसको इक्वेशन सेकंड छोड़ दें, आप इसको चलिए कर लिए, इसको इक्वेशन सेकंड कर लें, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर लें। समझ आ गई बात? ओके, अब बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखें, यहां तक कॉपी करें, पहले यहां तक कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखें लेट कैपिटल F यूज करना, मैं लिख रहा हूं लेट कैपिटल F21 वेक्टर लगाएं। Let capital F21 vector be the force per unit length, be the force per unit length experienced by the conductor carrying the current I2। ओके, तो बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। बेटा देखिए लेंथ DL2 ने फोर्स एक्सपीरियंस किया था स्मॉल F21 वेक्टर, तो कैपिटल F21 वेक्टर कितना हो जाएगा? इट इज स्मॉल F21 वेक्टर डिवाइडेड बाय द लेंथ, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द करंट लेंथ एलिमेंट। बात समझ आ गई? कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अब बेटा स्मॉल f वेक्टर 21 का वैल्यू डाल दें। सो दिस वेक्टर F21 is written as say I2 multiplied with B1 multiplied with R cap 21। बेटा DL2 से DL2 कैंसिल हो जाएगा, समझ आ गई बात? अब B1 का वैल्यू लगाएं। सो दिस F21 वेक्टर is written as I2 multiplied with mu naught by 4 pi into twice of I1। बेटा ये I1 लगाना भूल गए थे, तो ये 1 मार्क कर लेना जब वो जो B1 का एक्सप्रेशन था, डिवाइडेड बाय से R, ओके, मल्टीप्लाइड विद R कैप 21। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस हो जाती है यहां पर 4। ओके, एंड इन मैग्नीट्यूड, बेटा अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में फोर्स पर यूनिट लेंथ के मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, तो इन मैग्नीट्यूड दिस F21 इज रिटन एज, इसको ऐसे लिखें mu naught by 4 pi multiplied with twice of I1 I2 divided by R multiplied with, चलिए मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो इसको रहने दें बेटा, इसको कर लें इक्वेशन नंबर 5, कॉपी कर लें।
शायद स्वेस ये पूरा नहीं आ रहा है फ्रेम में, तो मैं साइड पे कर रहा हूं। इन मैग्नीट्यूड this F21 is written as mu naught by 4 pi multiplied with twice of I1 I2 divided by R। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लें। गॉट इट? बेटा बात समझ आ गई? जल्दी से कॉपी करें और फिर ये फोर्स मार्क कर लें। कैपिटल F21 वेक्टर यहां पर, that is towards the first conductor। पल्ले पड़ गई ये बात? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिख लें वेक्टर F21 is directed towards the conductor carrying the current I1। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे हमने पॉइंट डी के लिए काम किया वैसे पॉइंट सी के लिए काम करेंगे, ठीक है ना? तो होप सो स्टूडेंट्स आपने शायद कॉपी कर लिया था। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे एट द पॉइंट सी। At the point C, लिखिए बेटा, लिखिए बेटा, let vector B2 be the magnetic field at the point C on the conductor carrying the current I1। ठीक है? तो बेटा देखिए पॉइंट C दिखाई दे रहा है, कंडक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट C 0 होगा। I2 का मैग्नेटिक फील्ड अब की बारी पॉइंट C पे एग्जिस्ट करेगा। तो I2 के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, राइट हैंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फिंगर्स पॉइंट करिए टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हाथ को घुमाना है इस तरीके से कि थंब आ जाए करंट के अलोंग, उसके बाद फिंगर्स को पॉइंट आउट करें, कर्ल करें, तो फिंगर्स दिखाई दे रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स B2 का मैग्नीट्यूड लिख लें, इट इज से K multiplied with the current as I2 divided by R, sorry K into 2 कर ले। K into से twice of से I2 divided by से R, रिड्यूस कर ले। B2 is written as K का वैल्यू पहले लगा ले, इट इज से mu naught by 4 pi into twice of से I2 divided by से R। बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B2 is perpendicular to the plane of conductors and in outward direction and outwards or towards the reader, towards the reader। कॉपी करते जाए साथ साथ। इन टोटल 5 इक्वेशन हो गई थी। आप ऐसा करें कि बेटा इसको लिख लें इक्वेशन नंबर 6, इसको इक्वेशन नंबर 6 करें, डन। फिर उसके बाद लिखें लेट स्मॉल f12 वेक्टर मार्क करें, लेट f12 वेक्टर, लेट स्मॉल f वेक्टर 12, लेट स्मॉल f वेक्टर 12 be the force experienced by the length element वेक्टर dl1। क्लियर? अब स्टूडेंट्स बेटा इस फोर्स वेक्टर की बात करते हैं, तो ये फोर्स वेक्टर इन मैग्नीट्यूड, चलिए साथ में बात कर लेंगे। तो वेक्टर F21 की बात कर लें, इट विल बी, पहले करंट की बात करें, द करंट इज I1, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इट इज B2, लेंथ की बात करें, इट इज dl1। गॉट इट? ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, डायरेक्शन की बात करनी होगी। डायरेक्शन की चलिए काम करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, एरो का साइन हटा लेते हैं। सो दिस F12 is written as mu naught by 4 pi multiplied with twice of say I1 I2 divided by small r,
multiplied with vector dl1. Okay, sorry, multiplied with dl1. समझ आ गई बात? जल्दी से स्टूडेंट्स इसको कॉपी करें. जल्दी से कॉपी करें. नेक्स्ट लाइन में लिखें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f21. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f21. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f12. It is by Fleming's left hand rule. By Fleming's left hand rule along vector CD, okay, or along r cap 12. बेटा r cap 12 मेंशन कर दें कि r cap 12 यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में. तो वेक्टर है अब की बारी CD. क्लियर? तो यहां पर बेटा वेक्टर CD को हम बोल रहे हैं, वेक्टर CD को हम बोल रहे हैं इट इज से r12 वेक्टर. ठीक है, समझ आ गई बात? साथ ही मेंशन कर ले टुवर्ड्स द कंडक्टर carrying the current say I2. बेटा ऐसे मार्क करके छोड़ दें. पहले पड़ गई बात. अब बेटा लिख ले दिस वेक्टर f12 is written as mu naught by 4 pi twice of say I1 I2 divided by r multiplied with r cap 12. Let us call this as the equation number say 7. पहले मैग्नेटिक फील्ड वाली, क्योंकि मैं मिटा चुका हूं, मुझे याद नहीं है कितना थी, शायद 6 थी, तो ये 7 कर लें. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, कॉपी कर लें इसको. नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखें लेट वेक्टर f12, कैपिटल F यूज करना है. Let vector f12 be the force per unit length, be the force per unit length experienced by the conductor carrying the current I1. तो बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन लिखना है. It is f12 vector divided by the length. अरे यार लेंथ गायब हो गया, सॉरी सॉरी, लेंथ मिस हो गया बेटा, थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे. The length is dl1 multiplied with r cap 1. ये इक्वेशन नंबर 7 था. ठीक है, तो लेंथ is dl1. ओके, कॉपी करें इसको. फिर लिखें दिस वेक्टर f12 is written as mu naught by 4 pi multiplied with twice of say I1 I2 divided by r. बेटा देखिए, अब dl से dl कैंसिल हो जाएगा, dl1 से ये dl1 कैंसिल हो जाएगा. इट इज r cap 12. इसको करें आप 8. ओके, क्लियर? अब बेटा इन मैग्नीट्यूड दिस f12 is written as mu naught by 4 pi into it is say twice of say I1 I2 divided by r. ये सिंपल सा काम क्लियर हो गया. कॉपी करें इसको, फटाफट कॉपी करें. डन. डन. नेक्स्ट लाइन में एक स्टेटमेंट लिखें. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f12 is towards the conductor carrying the current I2. उसके बाद फुल स्टॉप लगाएं. फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन में एक स्टेटमेंट लिखें. फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड
From the above we conclude that the parallel conductors carrying the current in the same direction attract each other by the equal and opposite forces. Okay, so since it is all for today, the rest of the things along with the numericals we will discuss in the next lecture. Fine.